یہ آج کی ہماری آخری ویڈیو ہے، اس کے بعد جی ہماری ویڈیو نہیں آئے گی۔ ہمارا پتہ نہیں کب نمبر آئے گا، ہمیں بھی پتہ نہیں چلے گا، یا کسی کی دل آزاری ہوئی ہو میری طرف سے، میں دل سے معافی چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک، نیو ولاگ میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ یہ جو مالٹے جی سامنے پڑے ہیں بالکل سوکھے پڑے ہیں، اس کا پانی جو ہے ختم ہو گیا ہے مالٹوں کا، پڑے کسی نے کھائے نہیں ہے، بچے چلے گئے تھے چوک آزم، یہ ایسے ہی پڑے رہ گئے ہیں، سوکھے ہو گئے ہیں اندر سے۔ یہ سوکھے مالٹے کس کے لیے، اپنے لیے یا میرے لیے؟ نہیں میں نے تو کھا لیے ہیں، یہ نا آپ کے لیے۔ یہ سوکھے میں کھاؤں؟ نہیں یہ میں نے 2-3 پہلے کھائے ہیں لیکن مزہ نہیں آیا، نہ میٹھے ہیں نہ پانی ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر ہے پانی، ہاں وہ اس میں تھوڑا پانی ہے۔ کب سے پڑے ہیں یار یہ یہاں پہ اس کے اندر؟ جو شکریہ نے مجھے مالٹا دیا ہے، یہ پانی والا بھی ہے اور کچھ کھٹا بھی ہے، میٹھا بھی ہے۔ یہ پتہ نہیں انگلی ایسے کر کے سویا پڑا ہے خان صاحب، پکی نیند میں سویا پڑا ہے جی۔ مزے کی زندگی ہے، اصل زندگی یہی ہے، نہ گھر کی ٹینشن، نہ کھانے کی ٹینشن، نہ پینے کی ٹینشن۔ جب بھوک لگے گی رولے گا، بس چیزیں مل جائے گی، دودھ مل جائے گا، اللہ خیر سے اللہ۔ زارا جب بڑا انسان ہو جاتا ہے نا، یعنی کہ جب ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، پھر پتہ چلتا ہے بھئی گھر کیسے چلانا ہوتا ہے۔ ہاں جی بھائی، اصل زندگی تو تبھی ہوتی ہے جب سر پہ نا وہ گھر کی ذمہ داری آ جاتی ہے، ذمہ داری آتی ہے نا، تب صحیح پتہ چلتا ہے زندگی کا۔ جب شادی آپ کی نہیں ہوئی تھی کیسے مزے کی زندگی تھی، ہیں جی؟ ہاں جی، وہ بھی زندگی بہت اچھی تھی، نہیں تب بھی ذمہ داریاں تھی، تب میرے پاس گھر کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ ہاں مطلب وہ ہے کہ آپ وہ کیا کرتے تھے کپڑے کے اندر، وہ ہاں وہ نگ وغیرہ لگاتے تھے۔ اب تو میرے خیال دور وہ ختم ہو ہاں گیا۔ جی وہ تو ختم ہو گیا، لیکن میں نے اتنا نہیں کیا کام۔ اور کس نے کیا ہے؟ شکریہ باجی نے اور بڑی بہنوں نے کیا ہے، میں نے تو بس تھوڑا بہت ہی کیا۔ پھر آپ کیا کرتی تھی؟ میں گھر کو سنبھالتی تھی۔ اس کا مطلب ہے شکریہ آپ کو نگ وغیرہ اب اگر میں دے دوں آپ کو سوٹ وغیرہ لگا لو گے نگ نگ؟ ہاں جی وہ نگ وغیرہ بھی، اور جس پہ اڈے پہ وہ کپڑا ٹانگتے ہیں نا، وہ بھی لے کے دینا پڑے گا، اور کپڑے کے اوپر چھپائی وغیرہ آپ کروا کے دیں گے نا، پھر میں آپ کو بنا دیں گی۔ کیا بات ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ دور ختم ہو گئی ہے اس کا، مشینیں وغیرہ آ گئی ہیں، مشینیں میں اب لگنا شروع ہو گیا نگ وغیرہ۔ اب دوبارہ پھر دور آ گیا ہے، کیونکہ میں دیکھتی رہتی ہوں نا، کافی نا بازار جب جاتے ہیں نا، کافی میں نے دیکھا ہے کام نا ہاتھ کا ہوا ہوا، لیکن یہ جو اب دلہنوں کے بھی چل گیا نا، اب پھر وہی کام نا شروع ہو گیا، اب بلکہ وہی رواج پھر آ گیا۔ اس لیے تو کہتے ہیں اولڈ از گولڈ، ٹھیک ہے، جو پرانا زمانہ ہے نا وہ زبردست زمانہ ہے۔ بالکل جی، بہت زبردست زمانہ ہے، لیکن ہمارا جو امی اور کے گھر کا جو وقت گزرا نا، ماشاءاللہ سے بہت اچھا گزرا۔ اب آپ کے گھر کا تو وقت اچھا ہوتا ہے، لیکن جب اصل زندگی جو سی ہوتی ہے نا، سسرال میں آ کے نا پتہ چلتی ہے، لیکن ادھر کی بھی جو زندگی ہے نا، اللہ پاک کا شکر ہے، بہت اچھی زندگی گزر رہی ہے۔ امی کو جی ملنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور امی چوکادم سے چلی ہوئی تھی اور پتہ چلا ہے کہ بھی امی جی جو ہیں گھر پر آ گئی ہیں۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے، میں نے بھی کال نہیں کی، میرے بھی دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ بھئی چلو بھی پوچھ لیں، امی جی سے بھی پہنچ گئی ہیں، بھی راستے میں ہے۔ ہاں جی، میں نے تو آپ کو کہا تھا ہمیشہ نا آپ کال کر کے پوچھ لیں بھئی امی آپ گھر پہنچ گئے ہیں یا نہیں، تو شاید آپ کے ذہن میں نہیں رہا۔ اور اس سائڈ پہ یہ بھی موجود ہے، ہم نئے بندے ہیں، یہ نہ کاٹ لے۔ نہیں ہم پہلے بھی آئے ہیں نا، نہیں کاٹے گی، اگر تھوڑی سی یہ بولے گی نا، وہ جو امی کی بیٹی ہے نا آمنہ، وہ آ جائے گی باہر۔ چلو ٹھیک ہے، چلو جی بولنا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپی فاطمہ کے گھر جی میں پہنچا ہوا ہوں۔ آپی فاطمہ کی طبیعت بھی خراب ہے، بھائی رفیق کی صحت بھی خراب ہے، ان کو بھی بخار ہوا پڑا ہے اور اس کو بھی بخار ہوا پڑا ہے۔ میری آواز آ رہی ہے؟ اب جی اب سمجھ آئیے بھئی اس کو بھی بخار ہوا ہے۔ سمجھ آئی ہے نا؟ کب آپ بولتے ہیں نا مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے دونوں کان بند ہوئے پڑے۔ کیا ہو گیا کانوں کو؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جی کچا تیل پتا نہیں، کچا تیل ڈالا ہے، پکا نہیں ڈالا، کچا تیل گرم کر کے۔ کان بند ہوئے تھے نا، میں نے کہا کہ تیل ڈالتی ہوں شاید کھل جائے، وہ اور بھی بند ہو گئے زیادہ۔ اوہو خیال کرنا تھا نا، بس تیل ڈال دیا نا۔ اب اس کو نا صاف کروانا پڑے گا بھائی جان، کانوں کو کروانا پڑے گا، صاف ہوں گے پھر جا کے اس کے جو ہے نا اس کو سنائی دے گا، ورنہ اس کے کان بند ہو جائیں گے۔ اس کو پھر جو ہے نا وہ چھوٹا سپیکر نہیں ہوتا کان میں لگانے والا، وہ اس کو لگانا پڑے گا، اور ساتھ میں ایک مشین ہوتی ہے، وہ مرد کے تو یہاں جیب ہوتے ہیں نا، وہ جیب میں لگا دیتے ہیں، اور پھر وہ سسٹم کرنا پڑے گا۔ آپ کان دھلوا لو۔ ہاں جی دھلواؤں گی میں۔ کب دھلواؤ گے؟ جاؤں گی کل کو۔ کل کو دھلوانے جاؤ گے؟ دکان پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ وہ شہر میں ہے دکان۔ شہر میں دکان ہے، جہاں پہ میری دکان تھی نا اسی گلی میں ہے کلاچی کی دکان۔ ہاں جی کلاچی کے پاس ہی جاؤں گی، پہلے بھی میں نے 1-2 دفعہ دھلوائے تھے۔ میری سمیہ بیٹی اندر آ گئی ہے، میں تو گیا وہاں نلکے پہ، میں نے کہا وہاں پہ نلکے پہ جو ہے نا یہ دھو رہی ہے برتن، پھر میری کال آ گئی، میں نے کال سننے لگ گیا، پھر آپ اندر آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے دینے لگے نا، میں نے پتیلا دھو کے آنے والی کری ہے۔ بہت اچھا کیا۔ کیا کیا آپ نے برتن وغیرہ دھوئے ہیں؟ چائے بنانے لگی ہو؟ چائے بنانے کے لیے نا میں نے یہ چائے والی پتیلی دھلی پڑی تھی نا، یہ دھو کے لیے۔ کیا بات ہے جی۔ اچھا چائے ویسے بنا کس کے لیے رہی ہو؟ آپ کے لیے۔ اچھا چلو پھر چائے بنا لو، پھر میں نے جانا بھی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو جو ہے نا سردی بھی لگی ہے۔ ہاں جی مجھے بہت اس
टाइम ना मुझे ठंड ऐसा लगता है जैसे मैं बिस्तरे में लेटी। आप अपनी सेहत की दवाई भी लो, साथ में जो आपके कान बंद हुए पड़े हैं कानों की दवाई भी लो। हाँ जी लेती हूँ। क्या उठा रही हो? चीनी चीनी ऐड हो रही है जी चाय में। डाली है मैंने ना चीनी। चीनी कम डालना, ज्यादा ना डाल देना। मैंने बिल्कुल कम डाली। आपके जो मुझे पता है जो आप पीते हैं ना चाय, हाँ जी मीठा कम, तो मैंने उसी हिसाब से जो है ना ये डाली है। हाँ जी, अभी देखें शुगर दिखाता हूँ मैं जी। हाँ जी, आपकी फातिमा क्या हाल है? और नई ताजी सुनाओ, और सुनाओ। आपकी फातिमा ठीक हो? आपकी फातिमा ठीक हो? हाँ जी आप भी ठीक हो? तबीयत से ठीक है आपकी? हाँ जी सही है। अब से और रोटी शोटी खा ली? जी रोटी शोटी खा ली मैं कह रहा। क्या कह रहा? ऊंचा बोलना, मैं कह रहा रोटी शोटी खा ली। नहीं क्या चीज नहीं? क्या कह रहा? क्या हाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक है? हाँ जी। और सुना नवी ताजी? नहीं ताजी तो कुछ भी नहीं। क्या खारी पकारी? आज हमने बनाया दाल और गोश्त और साथ में चावल। माशाल्लाह। आप ही चावल खाएगी? चावल खाएगी आप ही? जी चावल खाओगी? हाँ जी। तू ना बोलना। और सुना नवी, चावल खाएगी? आवाज आ रही मेरी आप ही? आप ही क्या क्या चावल खाएगी? नहीं रोटी खाऊंगी। वो ये बहाने तो नहीं कर रही? पर नहीं है, वैसे भी ना अम्मी को कम सुनाई देता। क्या हो गया बाजी? मैंने कहा वाकई मुझे नहीं सुनाई देता। वो समिया से बातचीत कर रहे थे। और आप ठीक हो? कहाँ से सही है? तबीयत ही नहीं सही है मेरी। तबीयत ठीक नहीं है? अल्लाह पाक से देखा, कानों का इलाज करवा लो। वो कल मिलाद में गई, वो पढ़ रही, मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या पढ़ रही। बा आपने कहना था सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। सारे ही ऐसे कर रहे थे, मैं भी ऐसे ही कर रही थी, ऐसे ही कर रही थी। यहाँ से देखें जी सूरज गुरूब होने का कितना प्यारा मंजर है। सूरज गुरूब हो रहा है। और जी सुनाओ क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? क्या हाल कर रखा है? खेल खेल के सारे कपड़ों की बुरी हालत कर रखी है। और बिलाल आप सुनाओ, आप कैसे हो? आपका तो आगे का दांत ही नहीं है, दो नहीं है दांत हैं जी। कहाँ पर गए हैं? किधर गए हैं? टूट गए। और चलते हैं जी आप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह सरकार, आप सुनाए ठीक हैं? ये अल्लाह का शुक्र, हम ठीक ठाक है। आप सुना तबियत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ठीक रखे आप। यहाँ पे जी आप ही ने पता नहीं कुंडी के अंदर क्या चीज फूटी हुई है। लहसुन, अदरक और अदरक वाली हल्दी, प्याज और हरी मिर्च। और मैं सोच रहा था आप ही के कुकर में भी सालन वगैरह इस तरह भी बना सकते हैं। हाँ बना सकते। मैं तो कुकर में ना आलू मटर बना रही हूँ। अच्छा क्या बात है। आपकी देचकी में तो सुना था सालन वगैरह बनाते हैं, लेकिन दम वाली चीज जैसे गोश्त उबालना हो या पाए उबालने हो, और क्या चीज होती है, पंजे उबालने हो, ये तो मैंने देखा है, लेकिन सालन बनते हुए कुकर में नहीं देखा। आप देख लेना। शुक्र आप की जी, क्या बात है। हर नामुमकिन काम को मुमकिन कर देती हैं। थोड़ा सा काम डिफरेंट होना चाहिए ना, हर काम में जैसा नहीं होना चाहिए। अच्छी है ना? बिल्कुल सही फरमा रही हैं। फैमिली के हिसाब से आप इन्हें थोड़े से ही आलू काटे हुए हैं। अगर हमारे घर होते तो तकरीबन 4-5 किलो कट जाने थे। 2 किलो 2.5 किलो तो तकरीबन कटते हैं। तो ये बस अपने हिसाब से फिर मैंने काटे हैं। और शुक्रिया, मुझे याद आ रहा है मेथी नहीं बनाती, आलू मेथी नहीं बनाते। जब आप बनाए तो जरूर भेजना घर। चलो ठीक। मैं कुछ खाने के लिए जी लेकर आया हूँ, पकोड़े लेकर आया हूँ। मतलब ये है कि मिर्चा लेके आया हूँ पकोड़े वाली। तो ये मुझे कह रहे हैं ए क्या चीज़ है साहब पर के अंदर। मैं कह रहा हूँ पकोड़े है। खुश हो रहा है, पकोड़े खाएगा मिर्चों वाले हैं। शुक्रिया का तो मुझे पता नहीं किधर है। ज़ारा किचन में मौजूद है। जी जनाब, ज़ारा किधर है आपकी? भाई शुक्रिया बाटी तो कमरे में है। अच्छा जी। तो मैं इधर सालन गरम कर रही थी, तो यूसुफ के पापा है ना, तो वो ना रोटी मांग रहे थे, तो मैं मैं सालन गरम करती हूँ, फिर मैं आपको रोटी देती हूँ। चलें ठीक है जी। किस चीज़ का सालन है जनाब? मैं ये देख रात लेता वाला है भाई। हूँ। अच्छा चलो ठीक है जी। यानी कि हमारा सालन 2 दिन हो गया है। हाँ जी 2 दिन हो गए माशाल्लाह से, बच्चे नहीं ना, तो इसलिए ना सालन 2 दिन हो जाता है। चलो माशाल्लाह। चलो 2 आप अपने हस्बैंड को दें, जी अपना क्या चीज रोटी दें, खाना दें, मैं जाके शुक्रिया को देता हूँ। हाँ जी ठीक है। चलो यूसुफ अंदर जाओ, सर्दी हो रही है। शाबाश अंदर जाओ, सर्दी हो रही है। चलता हूँ जी, शुक्रिया को देता हूँ हरी मिर्चें। मैडम साहिबा बैठी है। अस्सलाम वालेकुम सरकार। जी क्या जी? ये मिर्चें लेके आ रहा हूँ पकोड़े वाली। मेरा दिल बड़ा कर रहा था, मैंने कहा ये चलो। तो फिर आप ही खाएंगे। तो आप ना खाना, चलो मैं खा लूंगा, कोई बात नहीं। हाँ तो मेरे लिए पकोड़े ले आने थे। ओहो, इस चीज का मुझे तो ख्याल नहीं रहा, अंदाजा ही नहीं रहा। वही लेके भी इतनी सारी आए माशाल्लाह से, इतनी सारी। हाँ तो 5-6 हैं। चलो 1-2 उसको दे दो, इब्राहिम को दे दो, बाकी मैं खा लूंगा। वो कह रहा मुझे दे दो। नहीं मिर्चें लग जाएंगी बेटे, आप छोटे हो ना, आप बड़े जब हो ना फिर खाना, ठीक है? मिर्चें हैं मुंह में, मिर्चें लग जाएंगी। कह रहा 2 दे दो।
बिल्कुल नहीं देना, मुंह में मिर्चें लग जाएंगी। ये बेसन दे दो थोड़ा सा। बेसन दे दो, आप भी बेसन ही खा लेना। दरवाज़ा जी खोल दिया है क्योंकि हमारी रज़ाइयाँ अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी हैं। और रज़ाइयाँ, या अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह पाक तेरा शुक्र अदा करते हैं मेरे सोने रब्बा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जो है इसको हम यहाँ पे सामने बरामदे में खड़ा करेंगे रेड़े को, और सुबह इंशाल्लाह ताला दुआ करवा कर फिर इंशाल्लाह अपना घर से रवाना होंगे। मेरी बहुत प्यारी आपी हैं, आप यूके में रहती हैं, आपकी तरफ से 20 रज़ाइयाँ और 20 गद्दे माशाल्लाह से हमारे पास पहुँच चुके हैं। गरीबों की अमानत है, हकदारों की अमानत है, मुस्तिक की अमानत है, यतीमों की अमानत है, मस्कीनों की अमानत है। ये इंशाल्लाह ताला सुबह हम दुआ करवा के घर से निकलेंगे अल्लाह का नाम लेकर, और फिर जाकर जिनकी अमानत है उन तक हमने पहुंचानी है। फजर का जी टाइम है, धुंध देखें कितनी ज़्यादा हो रही है, और हमने अपने गेट में ताले भी लगा रखे हैं, छोटा ताला भी लगाया हुआ है, बड़ा ताला भी लगाया हुआ है। शदीद किस्म की धुंध हो रही है, और हमारी रज़ाइयाँ भी आ चुकी थी रात की, ये यहाँ पे हमारी रज़ाइयाँ पड़ी हैं। और अहमद अली मेरा ख्याल नमाज की तैयारी कर रहा है। नमाज की तैयारी कर रहे हो? जी। चलो ठीक है, आप नमाज की तैयारी करो। ठीक। अच्छा हो गया कि मुझे उठाना नहीं पड़ा आपको। सर्दी हो रही है? हाँ जी, बहुत सर्दी हो रही है। धुंध कितनी हो रही है? हो गया। मेरे तो हाथ पाँव भी काँप रहे हैं सर्दी से। कितनी इंसानियत दुखी है जी, और कैसी कैसी दुनिया अल्लाह पाक ने पैदा की है, बनाई है, और इंसान देखकर परेशान हो जाता है। अभी जी मैं एक बुज़ुर्ग बाबा जी के पास पहुंचा हूं, इनकी दुख भरी कहानी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और ये जो हम कहानी आपको दिखाते हैं अपने व्लॉग के अंदर, ये सच्ची और बिल्कुल हकीकत होती हैं, कोई इसमें मजाक झूठ वगैरह नहीं होता। ये बच्ची के देखें जी, टांगें जो हैं बिल्कुल टेढ़ी हैं, और ये बेचारी जो है ना घिसट घिसट के चलती है। चल के दिखाओ, चल के दिखाओ। हाँ, ये ऐसे चलती है। हाँ, ये देखें, ये ऐसे चलती है बच्ची। ये बच्ची बेचारी ऐसे चलती है। सबसे पहले तो जी इसको हमने व्हील चेयर लेकर देनी है। कोई मेरा अल्लाह का प्यारा नेक बंदा, मेरा प्यारा बहन भाई, माँ हो, भाई हो, बहन हो, जो इस बच्ची को व्हील चेयर लेकर देना चाहिए। ये बहुत बड़ी नेकी है, बहुत बड़ी शहादत है, क्योंकि बेचारी बच्ची बोल भी नहीं सकती। बाबा जी बोल भी नहीं सकती? नहीं बोल सकती। बोलती कोई नहीं है? भैया जी, अब्बा बाजी रोटी मां खबे ना आप रोटी तुसी खिलांदे हो? तादी बेटी है? हां, चूरी कोट खबे ने अब्बू ते जैसे होई कुडे ने ओए ओए जैसे फर्ज आई खबे ना। ओए। मैं बूढ़ा बंदा, तादी बेटी जो है? मेरी बेटी बूढ़ा बंदा, मैं कमाऊं लगा हां को ना बोले दाद दे बाही काम नहीं करे ना, ते गरीब बंदा, कोई सौदे मत कोई इमदाद कीती वंजे ते बहुत बूढ़ा बंदा, घर है कुछ हालात को नहीं, घर मेरे दा बहुत गरीब हां। ते बच्ची है को बच्ची है, अल्लाह तो फारे, अल्लाह तो को तौफीक दे दे, तो कोई व्हील में को दो जा व्हील। अच्छा, ये इनके व्हील चेयर। हां, ओ मैं बोले इंशाल्लाह ताला कोई अल्लाह दे पारो कोई नेक सबब कोई बनेगा। अल्लाह तो को बहुत दे दे, आमीन। ते असां दुआ मंगदे हैं अल्लाह पाक दे, अल्लाह सब कुछ दे। ते हंज सा तेजा पे ते असां दुआ बटे मंगदे, अल्लाह पाक बहुत सब कुछ दो, अपना लंगर विच को खर्चा मर्चा ते दुआ तो करे ने। बूढ़े बंदे हैं, सो गोडियां बाहे गईयां। बाबा जी कह रहे जी मैं बूढ़ा बंदा हाँ, ते इस बुजुर्गी विच भी कमाना, क्योंकि ना कमाइए तो गुजारा नहीं होता। कौन देंदा हैगा? जी, कौन देंदा है कमाइए ना ते? कोई देना, आप कमाना तो आप बच्चे कमाना, इन्हें इलाज करे ना, इलाज नहीं होता बच्ची दा, आप कमाना। जो कमांदा है वो तो पेट नू पूरा हो जाता है, या इसका पेट भरदा है या फिर अपना पेट? पलदा ओए होए। ता रोदा बैठा ते ता आता अल्लाह मैं तौफीक दे, जैसे फर्ज दे अल्लाह देना, ये करो मैं को देखो अल्लाह पाक जरूर मदद अल्लाह करेगा। पाक बहुत दे, आमीन। बहुत दे ता तरक्की कर ताड़ी असां गरीब मां बाप। अल्लाह पाक जरूर मदद करेगा जी। इस फैमिली नू जी व्हील चेयर दी जरूरत है, इस बच्ची नू माजूर दी, इस माजूर बच्ची नू व्हील चेयर दी जरूरत है। नाले बाबा जी रो रहे हैं बेचारा, कहंदे कोई राशन दा इंतजाम कर दियो। ते इस बुजुर्गी विच बेचारा मजदूरी करदा है। जेड़ी जिंदगी है ना मजदूरी करन देनी है, सर्दी बहुत है ते पेट नहीं पलता, बहुत बूढ़ा बंदा, 11 महीना को ही है, बच्चे मैं किथा पा रहा। ओए होए। पेश की भी है, कितनी पेश की है? पेश की है वही लाख रुपया है। ओए होए। ते हम बच्चे कहां जे पेश की लावा अल्लाह। हाथ बांध के ते मैं को नहीं होता काम, बूढ़ा बंदा रोंदा बैठा मैं, ते तुम्हारी मेहरबानी हो सकेगा। हुणे जी मैं एक फैमिली कोल जी पहुंचे, इन्हां नूं रजाइयां दी अच्छी जरूरत है। बाजी किन्ने बच्चे ने तुहाडे? 4 बच्चे ने। दुपट्टा सर दा सही करो। ते बंदा तुहाडे नाल करदा है मजदूरी? काम नाल करवांदा हैगा?
ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਿੱਧੋ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰदिगार ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਫਰਮਾਵੇ। ਅਪੀਲ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਮਦਦ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵਸੀਲੇ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਵਰदिगार ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਆ ਦੇਵੇਂਗੀ ਨਾ? ਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਨਾ ਪੱਠੇ ਦੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਾਜੀ? ਜੀ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, 200 ਦਿਹਾੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇ 300 ਬਣ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ। दूसरी शादी करके इस इलाके तो चला गया हैगा? ਚਲਾ ਗਿਆ। कदी राबता भी नहीं कीता? ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕੋਈ कितना टाइम हो गया? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ। साल हो गया। ਜੀ। कदी उसनू जालिम इंसान नू बच्चों दी याद भी नहीं आई? ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀਰੇ। ओए होए ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ? ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਜੀ ਦੁਖਿਆਰੀ ਬਾਜੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਆਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਔਰਤ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਔਰਤ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦਵੇ। ਦੁਆ ਕरेंगे ना? ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਵੇ। आमीन। ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਪੋਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। अच्छा दुआ तो दे दी, अगर कुछ ना आया तो फिर? ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ। ਦੁਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी सरकार क्या कह रहे हो? हाँ? बाबा जी सरकार क्या कह रही हो? वो प्यारा कह रही हूँ, वो नहीं यूसुफ कह रहा बाबा आए। काफी देर से केला फिरा ना, इब्राहिम तो अभी आया। साथ में ये भी कहता है ना सब्जी लाए क्या दे रहे हैं बाबा? सब्जी लेकर आया हूँ। हैं जी? ये क्या कर रहे हो? मैंने बूट डाले हुए। अच्छा बूट डाले हुए हैं, वाह जी वाह, मैंने भी डाले हुए हैं। सर्दी बहुत ज्यादा है ना इसलिए दिखा रहा है कि भाई मैंने बूट डाले हुए हैं। बाबा जी आपने डाले हुए हैं तो मैंने भी डाले हुए हैं। हाँ जी, मैंने वो चारपाई वगैरह खड़ी कर रही थी, वो धूप में बैठे हुए थे ना, अब तो धूप चली गई है ना इधर से, तो एक चारपाई मैंने खड़ी कर दिया। यहाँ हमने माल्टे खाए थे, वो छिलक मैंने उसमें डाल दिया, माल्टे उठा के उधर रखने लगी। बेगम साहिबा की जी फरमाइश थी जी आज मैंने चिकन खाना है, मैं चिकन लेकर आ गया हूँ, आप अच्छी तरह से अब बनाना शुरू करें। दही भी ला दी है, साथ में आपको धनिया भी आपका ला दिया है। बस यही चीज की जरूरत थी। इब्राहिम आया, वो कहता भाभी कुछ लेके आना पकाने के लिए। मैं कहा अभी तो आप बहुत जल्दी आ गए, अभी थोड़ी देर से और आना था ना, फिर बनाना था। अब इसको नहीं पता था ना आप लेके आ रहे हैं पकाने के लिए। चलें अब शुरू करें बनाना। ठीक है। और इस साइड पे जी किचन है या चिकन है? किचन में जी ज़ारा मौजूद है और यहाँ पे जी अपने मिसाले जात वगैरह बना रही है। टमाटर हरी मिर्चें प्याज वगैरह काट ली। आपको पता लग गया था भी मैं लेकर आ रहा हूँ पकाने के लिए? हाँ जी, वो आपका फोन आया था चिकन बाजी के पास, तो चिकन बाजी कहते सिर्फ हरा धनिया है। मैं कहा फिर मसाला का घर रखा है, मैं इतना मसाला बना लेती हूँ। चलें ज़बरदस्त हो गया। मेरे ख्याल से जब से किचन को ओपन किया है मतलब चूल्हा और सिलेंडर आया है, अब यहीं पे दिल लगा हुआ है आपका। हाँ जी। मैडम साहब शुरू करें बनाना। वो चिकन को धो लेना, साफ कर लें, देखो चेक करो उसके अंदर वो जो ऊपर छिड़छिड़े वगैरह होते हैं वो साफ कर लो। मतलब चिकन को साफ सुथरा करना है, साफ सफाई करनी है उसकी, वो मैं करती हूँ। आटा भी मैंने गूंद लिया, मैंने आटा गूंदा, ज़ारा ने मसाला बनाया। लेकिन आप किचन की बात कर रहे हैं ना, किचन मेरा अभी अधूरा, अभी मुकम्मल नहीं है मेरा किचन। हाँ जी, अब इसके अंदर जो यहाँ पे डब्बे शब्बे लगती हैं, अभी इसका जो है ना पानी का सेटअप करना है, सिंक वगैरह होती है मेरे ख्याल से, कैबन सिंक, और नीचे यहाँ पे जी वो खिड़कियाँ वगैरह लगनी है। काफी खर्चे इस पे होना है, पैसे लगेंगे, फिर जाके ये तैयार होगा। आपका अधूरा किचन है। हाँ जी, अधूरा किचन है ना,
अल्लाह पाक मेरा ये किचन जो सा अधूरा है ना इसको मुकम्मल करवा दे। क्या बात है आपकी, आमीन। वीडियो का जी एंड करते हैं और इसी के साथ जी मैं आपको बता देता हूँ ये आज की हमारी आखिरी वीडियो है। इसके बाद जी हमारी वीडियो नहीं आएगी क्योंकि जो आज का दिन है 2025 ख़त्म हुआ चाहता है और 2025 का जो साल गुज़रा है इसमें हमें अल्लाह पाक ने खुशियाँ भी दी हैं और गम भी दिए हैं। खुशियाँ जो हैं अनगिनत खुशियाँ हैं जिसमें हम बता नहीं सकते आपको कौन कौन सी हमें अल्लाह पाक ने खुशी दी। इसी साल के एंड के महीनों में जो हमें सबसे बड़ा जो गम मिला, तकलीफ़ मिली, वो जैसा कि आपको पता है कि अल्लाह पाक ने चाँद सी गुड़िया अल्लाह पाक ने हमारे घर में आई थी। और अनाया नूर का जैसा कि आपको पता है कि ये 2025 का शुरू हुआ सूरज, और जो सूरज हमारा ग़ुरूब हुआ साल का, हमारे पास जो अनाया नूर आई थी 2025 में वो वापस चली गई है, अल्लाह पाक के पास पहुंच गई है और जन्नत में वो अपने वहाँ पे आराम कर रही है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जो भी साल बनाए हैं, दिन बनाए हैं अल्लाह पाक ने हमारे लिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ना है। एंड में हम यही कह सकते हैं कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये जो साल हमारा गुज़रा है खुशी भी लेकर आया है और तकलीफ़ें भी लेकर आया है। खुशियाँ तो वो हैं जो हम बयान ही नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि ये साल के एंड में जो है हमें तकलीफ़ मिली है, जो हमें सदमा मिला है, वो अनाया नूर का था और मुझे उससे बड़ी तकलीफ़ हुई। और जब अनाया नूर की डेथ हो गई थी अस्पताल में, जब मैंने उसको देखा तो वो ये कह रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता कि उसकी आंखों में क्या चीज़ थी जो मैंने महसूस की, मैंने देखी, और फिर जो है मेरे आंखों में से आंसू आ पड़े और मैं बाहर बैठकर रोता रहा। और मैं इतना रोया, यकीन करें मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो भी अल्लाह पाक ने दिन बनाए हैं, रात बनाई है, मिनट बनाए हैं, घंटे बनाए हैं, अल्लाह पाक ने अपने निज़ाम कुदरत बनाया हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा सदमा था वो अनाया नूर का था। ये सदमा हमें सारी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, क्योंकि जो चोट दिल पे लग जाती है ना, वो ठीक ज़ख़म तो ठीक हो जाता है, लेकिन जो गैबी चोट लगती है ना, जिसका ज़ख़म नहीं होता, वो कभी नहीं भरती। कहते हैं कि ज़ख़म भर जाता है जो लफ्ज़ों की बरसात होती है, चाहे वो अच्छे अल्फाज में हो चाहे बुरे अल्फाज में हो, वो इंसान कभी नहीं भूलता। बस अल्लाह पाक से दुआ है जो साल हमारा गुज़र गया है सब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एंड में मैं यही कहूँगा, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र पढ़ते हैं। अल्लाह पाक तूने जिस हाल में रखा हम राज़ी हैं और हमेशा राज़ी रहेंगे। यही तेरा बड़ा एहसान है मेरे मालिक कि तूने हमें इंसान पैदा किया, अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है और बेऐब पैदा किया। अल्लाह तेरा शुक्र अदा पढ़ते हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारा साल नया आ रहा है ये हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, कुल उम्मत मुसलमा के लिए 2026 का जो सूरज तुलू हो हमारे लिए खुशियाँ लेकर आए। और अल्लाह पाक ये जो सूरज तुलू हो हमारे गम सारे धुल जाएं। और जो कोई दिल में अना लेकर बैठा है, बुग़्ज़ लेकर बैठा है अल्लाह की रज़ा की खातिर, चाहे आपका कोई रिश्तेदार है, बहन है, भाई है, कोई भी है, कज़न है, रिश्ते में कुछ लगता है, आप उसको सच्चे दिल से माफ़ कर दें। क्योंकि देखें इस साल में हमारे कितने हमसे बिछड़ गए, हमें पता भी नहीं चला। हमारा पता नहीं कब नंबर आएगा, हमें भी पता नहीं चलेगा। इस तरह जो है ना दुनिया गुज़रती जा रही है। और मैं अपने इस वॉइस के ज़रिए, रिकॉर्डिंग के ज़रिए आप सबसे दिल से माफ़ी मांगता हूँ अगर मेरी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई हो, किसी का दिल टूटा हो, कोई वीडियो में ऐसी गलत बात हो जाती है। क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है, जाने अनजाने में कोई ऐसी बात मुंह से निकल आती है जिसकी वजह से इंसान बाद में पछताता है। तो मैं अल्लाह के हजूर बारगाह में भी अपनी माफ़ी का तलबगार हूँ कि मेरे साथ जो भी वाक़ये हुए ज़िंदगी में मैंने दिल से सबको माफ़ किया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी यहाँ तक की जो ज़िंदगी है, 2025 तक की जो ज़िंदगी है, आखिरी ये रात सूरज ख़त्म हो गया है, समझें अब ये दोबारा नहीं आना ज़िंदगी में। जैसे 2024 नहीं आया, 23 ही नहीं आया, 22 नहीं आया, 21 नहीं आया, तो ये 25 भी नहीं आना। तो अब हमारा 2026 शुरू हो गया है। अल्लाह की रज़ा की खातिर किसी के दिल में अगर मेरे लिए कोई भी नफ़रत है, कोई बात है, तो अल्लाह की
बारगाह में माफ़ी मैं चाहता हूँ, साथ में आपसे भी माफ़ी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप मुझे दिल से माफ़ करेंगे। किसी की दिल आज़ारी हुई हो मेरी तरफ से, मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ। इसी के साथ दुआओं में रखिएगा याद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।